we are talking about life of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This happens to be paper 1, section 3. Section 3. Okay, there are 4 sections in paper 1 and 4 sections in paper 2. So this happens to be the third section of paper 1, and this happens to be the most important section of paper 1, because in the exam you can get either a question 3 on this and or question number 4 of paper 1, which means you can either have 2 questions on this topic and you can have 1 question on this topic. एक तो आना लाजमी है, compulsory है, and the second question can also come from it out of the 5 questions that are there in the paper. Part A of this question of 10 marks. While this part A is of 10 marks, you are supposed to spend 18 minutes on this part of the paper. This part of the paper tests your knowledge. You have to write a 350. You have to write a 350 to 500 words response. You have to write a 350 to 500 words response when you attempt a part A. And apart from that, you need to utilize 3 or more paragraphs to write your answer, and that you need to couple your answer with a reference or a quotation. Okay, the ones who've joined us now, if you have joined from your complete name, after that, after writing the complete name, you must write down the name of the center in the bracket that you belong to, so that your attendance can be taken by my assistant. Number 2, if you do not belong to any institute or any center all over Karachi where I teach, so in the bracket you will write online. आपके नाम के आगे आपका नाम, सेंटर का नाम लिखना हुआ लाजमी है. Okay, so life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, paper 1, section number 3, and this happens to be question number 3 and 4 or 4 of paper 1. Walaikum assalam. Part B. अस्सलामुअलैकुम Walaikum assalam. Part B. सर ये कौन से बुक में है लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट बेटा पेपर 1 है, ये सेक्शन नंबर 3 है. आपके पास नोट्स पड़े हैं जो मैंने आपको दी लर्नर्स रूम में दिए थे? जी 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 बिल्कुल है सर. हैंड आउट 1.3 है, इसका नाम है हैंड आउट 1.3. हैंड आउट 1.3. 1.3. ठीक है, दिस इज अ 4 थैंक यू सर. ये जो 4 मार्क का सवाल है, मुस्तफा अपने नाम के आगे अपने सेंटर का नाम लिखो ताकि तुम्हारी अटेंडेंस सही मार्क हो. You have 7 minutes on this part of the paper, जी मैं लिखता and हूँ this सर. part of the paper tests your understanding. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा होता है. Part B. Okay, I'll change the marker for it so that there is no confusion. When we talk about a part B tests your understanding. You have to write down around 100 to 150 words. This is just a rough word limit that I have suggested, 100 to 150 words, and that apart from that 100 to 150 words, and you have to mention either 1 or 2 paragraphs, 1 or 2 paras, and this is how you go about it. So this is part A's and part B's that we'll be referring to. I have divided this section, paper 1, section 3, handout 1.3 into 20 questions. How many questions are there? Yes, Zainab. Okay. Out of these 20 questions, in the last Sunday's class, we did question number 1 to 5. Today, we are attempting to do question number 6 to 10. And if time permits, I will also go towards question number 11. Okay. So question number 6 to 10, kya hai? Let us now proceed. The ones who joined us now, please take the snapshot of this. The other students who are joining us, I would request you to take out your register. Walaikum assalam, Zain. I would request you to take out your register and write all the things that I write. If your speed becomes slower and I am moving on to the next slide, I will count till 5, 4, 3, 2, 1. This countdown means that I'm moving on to the next slide. स्क्रीनशॉट ले लो फिर बाद में कॉपी कर लो. And if you have not written it down by that time, you will take a screenshot or you'll take a picture. If you're taking the class from the laptop, so you'll utilize your phone and take a picture from it. Okay. So you will now take the snapshot of it, and we are moving on and starting off with the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Tayyib, you're asking that is it a 200 to 250 for a 10 marker? I don't think so. Depends on the nature of the question. अगर nature of the question बहुत छोटा है तो शायद 300 words में हम accept कर लें. ये सारी rough limit मेरी generate की हुई है as per seeing all these scripts for the past years and talking to the examiners. So you can go beyond that as well. You can go 600 words as well. अगर 350 to 500 नहीं बन रहा तो 300 words पे भी आप restrict कर सकते हो. But you should be able to cover the 5 points that are required in part A. The ones who have joined us now, उनको मैं एक और चीज बता देता हूँ. If this is written, so let me tell you कि part A का key recipe क्या होता है to gain a 10 on 10, okay? यानी 9 on 10. So I'm counting till 5 and then I move on to the next slide. 5, 4, 3,
2, 1. Okay, so now I move on to the next slide, and that is that for an excellent part A, that is of 10 marks, worth 10 marks, your answer should comprise of these 5 ingredients. Number 1, it should be detailed. Number 2, it should be factually, ये आप अपनी कॉपी के पीछे लिखिएगा, इसको हम हर दफा रेफर करेंगे. It should be factually correct. Number 3, it should be relevant to the needs of the question. Number 4, it should have references or quotations from the Quran or Sunnah to support your viewpoint. And number 5, it should have what? It should be well sequenced or well structured. Well sequenced, structured, or organized. अगर आपके 10 मार्क के सवाल के अंदर चाहे वो लाइफ ऑफ द प्रॉफिट का है या किसी भी पार्ट ए 10 मार्क्स does have these 5 ingredients, you will move up the ladder level 4, and that is the highest marking that you will either get an 8 on 10 or the 9 on 10 or the 10 on 10. और इसके बाद जब उनको ताइफ में पत्थर मारे गए, yet he remained steadfast, he forgave them, prayed for their guidance, मगर he was very sad at what had happened during these 3 years. मगर इन सारे इवेंट्स के बावजूद जब उन्होंने why me, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इस तरह का सवाल नहीं पूछा, बल्कि अल्लाह की रजा में राजी रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको अपने पास वाक़या मेराज पे बुलाया. ये एक ऐसी मौजज़ाना जर्नी है, मिराकुलस जर्नी है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौका मिला that he met with Allah subhanahu wa ta'ala, and this मुलाकात with any of the creation of this entire universe was the closest and was the most privileged मुलाकात. इससे ज्यादा ना ही कभी कोई मखलूक अल्लाह के करीब हुई मुलाकात करने के लिए और ना ही कोई मखलूक आगे होगी. So that is the 10th year of prophethood में question number 6. So question number 6 is on Isra wa Miraj, the miraculous journey to make the Prophet sallallahu alaihi wasallam happy, to remotivate him and to give him the inam of being patient and steadfast. तो हम देख लेते हैं पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस. हमारे हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2011, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट इज गिव एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स नाइट जर्नी इसरा व मेराज. तो इसरा व मेराज के नाइट जर्नी के इवेंट्स के बारे में बताएं. और उसके बाद अगला क्वेश्चन आया नवंबर 2016 में, इसको भी मैं क्वेश्चन 6 बोल रहा हूं क्योंकि इसका टॉपिक सेम है, एंड दैट इज द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टेकन ऑन अ नाइट जर्नी एंड असेंड टू द हेवेंस, अल इसरा व मेराज, राइट एन अकाउंट ऑफ दिस जर्नी. तो अब हम चलते हैं किससे रिलेटेड. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट थिंग, and that is the prophet's miraculous journey. Question number 6, Isra wa Miraj. So what is question number 6, Isra wa Miraj? Allah subhanahu wa ta'ala had seen the Prophet sallallahu alaihi wasallam work hard for Islam. You will, in the first paragraph, you can talk about the background के 3 साल तक लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे. 7th year of prophethood से 9th year of prophethood तक लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे क्योंकि इनका बॉयकॉट किया जा सका है. और जब इनका बॉयकॉट किया गया है तो इनका बॉयकॉट किए जाने की वजह से जब ये अपना पैगाम फेयर ऑफ उकस या किसी मेले में अपने पैगाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, तो अबू लहाब जो कि इनका सगा चाचा था मगर इस बॉयकॉट का हिस्सा नहीं बना था, वो प्रॉफिट के बहुत एंटी था, तो वो बार बार जो है चिल्ला के और वर्बल अब्यूज करके प्रॉफिट को अपनी बात मुकम्मल करने नहीं देता. और जब वो प्रॉफिट को अपनी बात मुकम्मल करने नहीं देता तो उसके बाद क्या होता कि लोग जो है वो प्रॉफिट की मैसेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि इनके अपने खानदान वाले और इनके अपने लोगों ने ही इनको मक्का से बाहर निकाल दिया है, पूरे खानदान को और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों ने इस्लाम कबूल करना कम कर दिया. इसके बाद जब ये बॉयकॉट उठा तो खदीजा और अबू तालिब गुजर गए. दैट मेड द प्रॉफिट फर्दर सैड, एंड व्हेन ही वेंट टू ताइफ, the people of Taif did not welcome him with good words but even stoned him, and his shoes were filled with blood. So it was a very dark period for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so after patience with every difficulty, inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra, बेशक हर डिफिकल्टी के बाद आसानी है, बेशक हर डिफिकल्टी के बाद आसानी है. तो इस नतीजे के अंदर जब प्रॉफिट खामोश रहे तो अल्लाह ताला ने इनको एक मिराकुलस जर्नी, एक इनाम के तौर पे एक जर्नी अता करी जिसको हम बोलते हैं इसरा एंड मेराज. दिस जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 2 phases. The first phase is known as Isra, the second phase is known as Miraj. So इसरा की मेराज जर्नी में क्या हुआ? So पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, he suffered much but never complained. Now Allah decided to honor his last prophet by inviting him to visit heaven and show his signs. Jibreel alayhi salam one night around 27th of Rajab came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and woke him up from his bed, and then opened his chest
washed his heart with the water of Zamzam. This miraculous washing of the heart of Zamzam was done once when he was 5 years old and was playing with Halima Sadia's son. And now the second time it was done to take him to the seven heavens. So his heart was washed with the water of Zamzam and placed it back. And then he was given a buraq. Buraq is a heavenly horse-like creature, a white. It's like a mule, somewhere between a horse and a donkey. And it had two wings and it was white in nature. It is a heavenly animal. And the Prophet ﷺ rode on it, sat on it, and within less than blink of an eye, he visited various places. So the various places that he visited was, आप बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम, रसूलों का नाम अपने जहन में आए जिनको आसमानी किताब मिली है, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पे उन्होंने विजिट किया, कोहे तूर पे, माउंट सिनाई पे, जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को रेवलेशन मिली थी. इसी तरह से बैतुल इल्म, द प्लेस वेयर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बोर्न, ही विजिटेड देयर. And the place where Hazrat Isa alayhi salam was born, he visited there. And finally, he went to Jerusalem. Jerusalem is a place which is now under the occupied territory of Israel. It is between Israel and Palestine. And Jerusalem is a place which is known as the land of the prophets. And it is holy to the Jews, it is holy to the Christians, and it is holy to the Muslims. So the Prophet ﷺ reached Jerusalem, where at Beit al-Maqdas, he offered the prayers of all the prophets. So he offered the prayers of all the prophets. 2 रकात उन्होंने नमाज पढ़ाई, पहले अपने बुर्राक को उन्होंने रस्सी से बांधा और उसके बाद tie up करने के बाद he led the prayers of all the prophets and he got the honor and prestige and he realized that he's not only the prophet of this ummah but he is the leader, he is the Imamul Anbiya of all prophets as well. And after that, Jibril alayhi salam offered him two vessels to drink from. One was for wine and one was milk. And Prophet ﷺ chose to drink from milk, and Jibril said, you have been guided by fitra. Had you selected the vessel of wine, there would have been a possibility that your ummah would have gone astray. Sir? So, जी. Sir, fitra क्या होता है? फितरा का मतलब होता है नेचर. यू हैव बीन गाइडेड बाय नेचर, यू आर ऑन द पाथ ऑफ नेचर. यानी जैसे हमें नेचर बताती है कि हमें हेल्थी चीजें खानी चाहिए और फजूल चीजें नहीं खानी चाहिए. नेचर का मतलब हमारे इन बिल्ट कॉन्शियसनेस जो अल्लाह ताला डालते हैं, राइट? ठीक है, फितरत जिसे कहते हैं. ओके, तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? तो हम चले गए, Prophet ﷺ chose to drink from milk. This journey, this first part of the journey from Makkah towards all these various places, including the last place known as Jerusalem, this journey is known as Isra. Okay, now since you have to write the answer into 3 to 5 paragraphs, more paragraphs have to be introduced. Every new idea should start with a new paragraph, और एक line बीच में आपने छोड़नी होती है with a line space between, so you can talk about the journey of Isra. The first paragraph can talk about why this journey took place or what was the background, 3-4 लाइनों के अंदर, due to which this journey happened, जो मैंने आपके सामने रखा. दूसरे पैराग्राफ में आप इसरा का पूरा वाकया सुना सकते हैं. और अली ने पूछा एस्ट्रे का मतलब होता है. एस्ट्रे का मतलब होता है कि अगर आपने शराब से चीज पी होती तो योर उम्मा माइट हैव गॉन एस्ट्रेट, का मतलब कि वो रास्ते से भटकने के उनके चांसेस ज्यादा हो जाते. तो ये बताया जा रहा था कि उन्होंने दूध का वेसल चुना, तो देयर विल बी सम ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ इट ऑन द उम्मा. उसके बाद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज नोन एज इसरा. इसरा को आपने डिफाइन किया. द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी इज नोन एज मेराज. मेराज मींस टू असेंड अपवर्ड्स, ऊपर उठना. एंड सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड टू असेंड अपवर्ड्स. मुसलमानों का अकीदा है कि जिस तरह से ये एक आसमान एग्जिस्ट करता है, इससे ऊपर 7 आसमान एग्जिस्ट करते हैं, तो वन आफ्टर द अदर वो आसमानों पे ऊपर चढ़ते रहे फॉर अ 10 मार्क्स. तैयब तुमने क्लास कितने बजे ज्वाइन की, एग्जैक्ट टाइम बताओ. मैंने इस सवाल का जवाब 1:05 पे दिया था. ओके, कि 10 मार्क्स का आंसर एक पूरा व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन लिखवाई थी. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू करें. दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. आई वाज अबाउट टू कैंसिल द क्लास टुडे, बट ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर आर 12 वीक्स लेफ्ट, you respect my time and your time as well. People are walking in at 11, 12, 1:10, 1:20, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट डोर नेबर है उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और उनकी नमाज जनाजा थी 1:15 बजे, 1:15 पे. मगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं कि अगर अभी मैं क्लास कैंसिल करता तो मैं इसको कब रीस्केड्यूल करता, और संडे का दिन आप लोग के लिए भी परेशान कौन होता है. यानी मेरी ये बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि मैं आप लोग को अनरिलायबल तरीके से आधे घंटे के नोटिस पे क्लास का नोटिस ना दूं, बल्कि आपको पूरे हफ्ते से आपके स्केड्यूलिंग का पता हो. तो आई हैड टू मिस दैट नमाज जनाजा. हालांकि इज अ वेरी 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 नेक्स्ट डोर नेबर. तो अभी जब 3 बजे के बाद जब वो तदफीन वगैरह करके आ जाएंगे तो आई माइट गो ओवर देयर. तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको पहले से 1 हफ्ते पहले, 10 हफ्ते पहले से टाइम दूं, और मैंने खास 1 बजे का टाइम चुना है, वरना मैं सुबह 11 बजे का भी चुन सकता था ताकि मैं 1 बजे फारिग हो जाऊं और फिर मैं दोपहर शाम फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकूं. बट आई नो कि संडे का दिन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू गेट अप इन द मॉर्निंग, एंड दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट अ टाइम ऑफ 1 PM. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 PM शार्प, यू डोंट हैव टू ट्रैवल इनटू द ट्रैफिक एक्सेट्रा, तो 1 PM शार्प लॉग इन करें. ओके, उसके बाद फिर हम चलते हैं. तो फिर आप रिकॉर्डेड लेसन देख लेना बेटा. इसके बाद फिर हम कहां पर थे? हम लोग क्या बात कर रहे थे?
देखो अब एक बच्चा इर्तिजा खान इज कमिंग ऑनलाइन, पता नहीं 135। ओके, तो हम बात कर रहे थे द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देन ट्रैवल्ड ऑन बुर्राक, हेवनली हॉर्स लाइक क्रिएचर, ये हो गया द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो अब जब वो असेंड कर रहे थे हेवंस के ऊपर तो उन्होंने अलग अलग अंबिया अलैहि सलाम से मुलाकात करी। द सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी इज नोन एज मेराज, मेराज मींस असेंशन, ऊपर उठना। और अब जब वो बात कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, ऊपर उठते उठते उन्होंने वेरियस मैसेंजर से मुलाकात करी, जैसा कि उनकी हजरत आदम अलैहि सलाम से पहले आसमान पे मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे हजरत ईसा अलैहि सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पे गालिबन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बात हुई, चौथे आसमान पे हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, फिफ्थ आसमान पे हजरत हारून से, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, और सातवें आसमान पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ वेरी क्लोज इन अपीयरेंस टू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब उनकी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने के बाद उनको और चीजें दिखाई गई, जैसा कि उनको जन्नत और जहन्नम दिखाया गया, द फिजिकल एंड द पीपल हु विल बी देयर, क्योंकि वहां पर टाइम डायमेंशंस नहीं होते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं होता, टाइम भी अल्लाह की क्रिएशन है। तो उनको दिखाया गया कि जन्नत के अंदर कौन लोग होंगे और उनकी निशानियां बताई गई, और जहन्नम के अंदर कौन होंगे और उनकी निशानियां बताई गई। एंड ही मेट विद मालिक द गेट कीपर ऑफ हेल, एंड आफ्टर दैट ही आल्सो सॉ बैतुल मामूर। बैतुल मामूर होता है द काबा ऑफ एंजल्स। तो जिस तरह का काबा दुनिया में लाई करता है, जिसको मुस्लिम सर्कमएम्बुलेट करते हैं, तवाफ करते हैं, राउंड्स लेते हैं अराउंड द होली काबा। अब मुसलमानों का कीदा है इसी काबे के 7 आसमानों के ऊपर एक काबा ऑफ एंजल्स लाई करता है, बैतुल मामूर द काबा ऑफ एंजल्स, और उसके ऊपर एंजल्स तवाफ करते हैं उसके गिर्द। और 70,000 एंजल्स अगर सुबह तवाफ करते हैं तो उनकी बारी वापस नहीं आएगी 70,000 एंजल्स की। बेटा फातिमा, आप समझ लो आपको 500 वर्ड्स में पूरे वाकये मेराज को कवर करना है। सम पीपल विल राइट डिफरेंट डिटेल्स इन द आंसर, सम पीपल विल चूज टू राइट डिफरेंट डिटेल्स इन द आंसर, सो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट यू चूज टू राइट, बट इट शुड बी रेलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द क्वेश्चन। सो इफ somebody knows the description of burraq and would like to write it in a concise way in 2-3 lines, that will add to the answer। मगर हम आपको ऐसे पॉइंट्स नहीं देते कि इसने ये एक पॉइंट नहीं लिखा तो इसका एक नंबर काट लो, बल्कि ओवरऑल ऐसे डिटेल्ड है या नहीं। कुछ लोग जो मीटिंग्स विद द प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा कंटेंट दे देंगे, कुछ लोग जो है वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हेवन एंड हेल और इनहैबिटेंट्स के ऊपर ज्यादा नॉलेज दे देंगे, बट ओवरऑल आपका ऐसे कैसा है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप असली वाकया मेराज लिखने चाहो तो हो सकता है 5 पेजों पे चले जाए, 10 पेजों पे चले जाए, मगर हमें तो अपने आंसर को लिमिट करना है बिटवीन 350 to 500 वर्ड्स। सो टेक्निकली यू विल डिसाइड एज पर योर आंसर के व्हाट डिटेल्स यू नीड टू पुट इन, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट द डिटेल्स दैट यू आर पुटिंग इन इज ऑफ इसरा एंड मेराज ओनली, नॉट बिफोर दैट और नॉट आफ्टर दैट। हम लोग चले गए। अच्छा, सिद्दुल मुंता। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हेवन और हेल दिखाया गया, बैतुल मामूर दिखाया गया, काबा ऑफ एंजल्स दिखाया गया, और उसके बाद इन्होंने प्रोसीड किया फर्दर एंड ही रीच्ड एट अ पॉइंट नोन एज सिदरतुल मुंतहा। तो इस सिदरतुल मुंतहा के अंदर, मरियम यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट इट डाउन एंड आई विल आंसर, जैसे मैंने फातिमा को जवाब दिया। तो अच्छा चलो, अब माइक खोलो, तुमने रेज योर हैंड किया तो अब बोलो क्या पूछना चाह रही हो। सर, वो जो आपने बताया बैतुल मामूर के बारे में, तो सिर्फ 70 एंजल्स आते हैं 70,000? 70,000 एंजल्स, अगर नोट्स में 70 लिखा हुआ सर है तो लेकिन गलत आपके लिखा हुआ है, नोट्स में 70 लिखा हुआ है। आपको मिस प्रिंट है, आप उसको 70,000 कर लें, ठीक है। ओके, सही है। ओके, अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ, बैतुल मामूर द काबा ऑफ एंजल्स। और उसके बाद फिर सिदरतुल मुंतहा एक एक्सट्रीम पॉइंट आया, और उस एक्सट्रीम पॉइंट पे एंजल ने कहा कि अगर मैं इस पॉइंट के बियॉन्ड जाऊंगा, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जो उनको अकम्पनी कर रहे थे, कि इफ आई गो बियॉन्ड दिस सर्टेन पॉइंट माय विंग्स विल गेट बर्न्ड, एंड सो जिब्राइल अलैहिस्सलाम स्टॉप्ड एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोसीडेड अलोन। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोसीड किया अलोन, तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात हुई,